और साथ में ज्वाइन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड आईटी श्री कपिल सिब्बल। आइए उनका तालियों के साथ स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली बी सीटेड। आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। At the outset, ladies and gentlemen, CSC SPV would like to extend a heartfelt thanks to all our distinguished dignitaries on the dais. As we've always said, today we have the launch of the e-inclusion project, under which we are going to be extending training to 45,000 SC, ST and women, making them illiterate and further extending the services of the Government of India, the financial services and social services, taking them to the doorstep of people. And joining us in the inaugural session, we have the dignitaries who have envisioned this entire program and who are further driving it and guiding and leading this project. We express thanks to them, and I would like to request Dr. Dinesh Kumar Tyagi, the CEO of CSE SPV, to first kindly accord a floral welcome to the Honorable Minister. Please join us, ladies and gentlemen, as we extend good wishes to the Honorable Minister, Shri Kapil Sibbal. Welcoming Shri J. Satyanarayana, respected Secretary, Department of Electronics and Information Technology. A heartiest welcome to Shri Rajiv Gauba, Additional Secretary, DAITY, and welcoming Joint Secretary, DAITY, Shri Ajay Kumar. Further, ladies and gentlemen, as we were informing you, 45,000 people are going to be trained under this project. 4,303 beneficiaries have already been identified, and we have 100 of them who are present with us. So it's a big project which is going to be taken forward. So at the outset, let us invoke the blessings of the Almighty and seek further guidance of the Almighty by lighting the ceremonial lamp. Would like to request the Honorable Minister and the other distinguished dignitaries to kindly light this lamp of knowledge and wisdom. ये एक परम ज्योति है जो काफी सारी नवज्योतियों को, जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि एक ज्योत से अनेक ज्योतियों को यहाँ पर जलाया जा रहा है। और यही उद्देश्य है इस पूरे प्रोजेक्ट का कि हम सभी लोगों को शिक्षित कर सके और ज्ञान, डिवाइसेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड. Mr. Ajay Kumar, Joint Secretary DAITY, is currently responsible for the promotion of electronic hardware industry, development of human resource for IT and electronics, development of e-infrastructure and e-learning initiatives in the country. In the past, he has been recognized for his various e-governance initiatives in the country. I would like to request and invite him to kindly introduce further the project and also for his opening remarks. माननीय सचिव महोदय श्री सत्यनारायण जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्री राजीव गौबा जी, सीएससी एसपीवी सीईओ श्री दिनेश त्यागी जी, यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, सीएससी एसपीवी के वीएलईज और बाकी सब मित्र। नेशनल पॉलिसी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी कि हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को आईटी लिटरेट बनाया जाएगा। तकरीबन 25 करोड़ लोगों को ये आईटी लिटरेसी लिटरेट बनाने का एक बहुत ही बड़ा अभियान शुरू करने का एक घोषणा की थी सरकार ने। उस घोषणा के तहत इस प्रोग्राम के द्वारा सीएससी एसपीवी ने सबसे पहले बढ़त ली है। उन्होंने एक प्रोग्राम देश के 12 स्टेट्स में
45,000 लोगों को आईटी लिटरेट बनाने का बीड़ा उठाया है। ये 45,000 सबसे एक तरह से कहा जाए कठिन परिस्थिति में जो लोग हैं उनको आईटी लिटरेट करने का काम शुरू किया है। 15,000 एससी, 15,000 एसटी और 15,000 विमेन कैटेगरी के लोगों को इस प्रोग्राम के तहत लिया जाएगा। इसी साल करीब 4-5 महीने पहले ही इन्होंने सीएससी एसपीवी ने इस प्रोग्राम की पूरी इन्होंने परिकल्पना करके सरकार को दिया था। इसके अप्रूवल के फौरन बाद इन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया और बहुत कहने में बहुत हर्ष हो रहा है कि तकरीबन 4,500 लोगों को ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन का काम खत्म हो चुका है और आज कुछ ही महीनों के अंदर 2-3 महीनों के अंदर 300 लोगों ने इस कोर्स की ट्रेनिंग पूरी की है, नाइलिट के बीसीसी सर्टिफिकेट को पास किया है और उनको आज यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे आदरणीय मंत्री जी द्वारा। एक अच्छे कार्य के एक बहुत बड़े प्रोग्राम का बहुत ही शुभारंभ मैं इसको समझता हूं और मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले इस कार्य के लिए सीएससी एसपीवी को उनके सीईओ को बधाई देना चाहता हूं। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसके अगले चरण में 10 लाख लोगों की एक परियोजना बनाने की सरकार परियोजना बना रही है। उस परियोजना में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हर स्टेट और यूटी में देश के सब स्टेट्स में ये स्कीम लागू की जाएगी। सीएससी एसपीवी भी और दूसरे भी सब एनजीओज, इंडस्ट्री सबके एक कोलैबोरेशन के द्वारा इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा। उस स्कीम में सबसे पहला काम यही होगा कि हर ब्लॉक के अंदर जो लोग आईटी लिटरेट नहीं है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग सेंटर लाया जाएगा जो कि ये एनजीओ, सीएससी, एसपीवी, सीएससी के द्वारा चलाए जा रहे होंगे और उनको वहां पे एक 2 तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का इसमें प्रावधान है। एक उन लोगों को जिनको बिल्कुल भी आईटी का ज्ञान नहीं है उनको बेसिक आईटी लिटरेसी जिससे वो कंप्यूटर यूज कर सकें, इंटरनेट यूज कर सकें, ईमेल यूज कर सकें, टैबलेट्स यूज कर सकें, इन सबको यूज करने का उसमें उनको ट्रेनिंग है। जो लोगों को बेसिक ट्रेनिंग मालूम है उनके लिए एक थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल के कोर्स का प्रावधान है। यहाँ पे वो आईटी को यूज कर सके करके कुछ सर्विसेज का भी लाभ उठा सकें ताकि वो अपने पानी के बिल जमा करा सकें, बिजली के बिल जमा करा सकें, सरकार द्वारा सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दे सकें। इस तरह के कार्य भी करने के लिए उस आईटी लिटरेसी प्रोग्राम में प्रावधान है। ये परियोजना इस समय सरकार इस समय उसको प्रोसेस कर रही है और हम आशा करते हैं बहुत ही जल्दी इस स्कीम की भी का अप्रूवल बहुत ही जल्दी होगा और हम इसे आगे बढ़ा सकेंगे। सो मित्रों, ये आईटी पॉलिसी में जो हर परिवार से एक जने को आईटी लिटरेट बनाने का जो अनाउंसमेंट थी उसका शुभारंभ आज होने जा रहा है। उसके लिए उस अवसर पे आप सबको मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा और इस कार्य के लिए सीएससी एसपीवी को और इस परियोजना से जुड़े सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी एडिशनल सेक्रेटरी डेटी श्री राजीव गौबा जो अध्यक्ष है नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के। सहयोगी डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर त्यागी, गौरव, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, डॉक्टर अजय ने एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की इस प्रोजेक्ट की। तो आज इसका एक शुभारंभ हो रहा है छोटे से कदम से कि 300 बेनिफिशियरीज जिन्होंने डिजिटल लिटरेसी प्राप्त कर ली, उन्होंने नाइलिट के द्वारा संचालित परीक्षा पास की है या उसका जो कार्यक्रम था उसको पूरा कर लिया, दोनों में से कोई एक काम किया है तो उनको माननीय मंत्री महोदय के करकमलों से सर्टिफिकेट मिलेगा। एक छोटा सा कदम है, मगर ये छोटा सा कदम एक बहुत बड़े प्रयास का हिस्सा है। जो
मंत्री महोदय की परिकल्पना से पिछले साल 2012 में 3 बड़ी महत्वपूर्ण पॉलिसियों, 3 नीतियों को कैबिनेट ने अनुमोदन दिया। आईटी पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी और टेलीकॉम पॉलिसी। उसी में आईटी पॉलिसी में इस बात का उद्देश्य रखा गया कि हर परिवार से कम एक व्यक्ति डिजिटली लिटरेट करना है। तो उसकी शुरुआत इस कार्यक्रम से हो रही है, ई इंक्लूजन प्रोजेक्ट से। और ये संभव इसलिए हुआ है कि पॉलिसी बन गई, मगर हम लोग सभी जानते हैं, माननीय मंत्री महोदय भी जानते हैं कि पॉलिसी बनना और उसको जमीन पर लाने के बीच में काफी कई कुछ उसमें करना पड़ता है। प्रोजेक्ट बनाया गया, इम्प्लीमेंटेशनल अरेंजमेंट उसमें क्या होगी, फाइनेंसिंग, ईएफसी का अप्रूवल। मगर हमारे मंत्रालय में मंत्री महोदय ने बहुत ही स्कॉर्चिंग पेस हमारे लिए सेट किया हुआ है। 3 मंथ एजेंडा है, 1 ईयर एजेंडा है, और उसका अनुकरण करते हुए हमारे सचिव महोदय ने 100 एजेंडा हमारे लिए रख दिया है। तो उसके परिणाम स्वरूप इतने कम समय में ये योजना, ये प्रोजेक्ट बन गया और उसका कार्यान्वयन भी प्रारंभ हो गया है। और 300 लोगों ने तो डिजिटल लिटरेसी अख्तियार कर ली है, मगर अब जो ये रूपरेखा बन चुकी है, इम्प्लीमेंटेशनल अरेंजमेंट टाई अप हो चुका है, तो अब इसको हम बड़ी आसानी से स्केल अप कर सकते हैं। और इसलिए जैसा अजय ने बताया, 10 लाख लोगों को डिजिटल लिटरेसी देने के लिए 100 करोड़ की योजना बन चुकी है, जिस पर गहन रूप से विचार विमर्श चल रहा है और उसका अनुमोदन शीघ्र होने की आशा है। तो ये फुल स्केल पर ये प्रोजेक्ट लागू हो जाएगा। अभी तत्काल तो 45,000 लोगों को डिजिटल लिटरेसी देने की योजना स्वीकृत हो भी चुकी है 23 सितंबर को, जिसमें 15,000 अनुसूचित जाति के, 15,000 अनुसूचित जनजाति के और 15,000 महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी। और इसमें प्रति व्यक्ति जो खर्च है वो बहुत ही कम खर्च में हम लोग इसको कर रहे हैं, लगभग 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति। और ये सारा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है सीएससी नेटवर्क के माध्यम से, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये हमारे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। जो भी सेवाएं सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही हैं, उनको लेने के लिए जो फ्रंट एंड है, जिससे नागरिकों का सामना पड़ता, वास्ता पड़ता, वो कॉमन सर्विस सेंटर ही हैं। और ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे देश में छाया हुआ है, हर राज्य में है, हर पंचायत में है। और 1 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर, लगभग 1,30,000 अभी चल रहे हैं पीपीपी मोड में। और ये एक बहुत ही अनपैरेलल्ड नेटवर्क है, जो सरकार के विभिन्न विभागों के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिसका एहसास अब सबको हो रहा है और उसका यूज भी वो लोग कर रहे हैं। जैसे कि हाल में आधार प्रोजेक्ट ने सीएससीज को अपॉइंट किया है इसके लिए कि वहां उसका आप जाके एनरोलमेंट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सीएससीज का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने निर्णय लिया कि सीएससीज को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनाया जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर के जो एंटरटेनमेंट या मनोरंजन प्रदान करने वाले बहुत सारे नेटवर्क हैं, वो इसका इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और अब कई और ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिनसे कि कॉमन सर्विस सेंटर्स का जो प्रयोग है, जो उनका उपयोग नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए और भी बहुत बृहद पैमाने पर किया जाएगा। जैसे कि नोफन प्रोजेक्ट, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट, जिसमें कि ब्रॉडबैंड एक्सेस हर पंचायत तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। बड़ी तेजी से वो कार्यक्रम चल रहा है और हमने अपने डिपार्टमेंट से एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको प्रदर्शित किया है कि कैसे इसका उपयोग करके स्वास्थ्य विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, अन्य विभागों द्वारा नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं। तो इस सीएससी नेटवर्क में भी कुछ
कमियां अवश्य हैं, इसमें राज्य सरकारों की उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं जितनी होनी चाहिए। और जब ये सेवाएं इतने बड़े पैमाने पर उनके माध्यम से जाने लगेंगी तो कॉमन सर्विस सेंटर्स को भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, नेटवर्क की, कनेक्टिविटी की, बिजली की आपूर्ति की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना पड़ेगा। तो इसको पूरा करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए CSC 2.0 की योजना तैयार की जा रही है, जिसको जल्दी ही हम अनुमोदन के लिए मंत्री महोदय के पास और फिर कैबिनेट में ले जाएंगे। तो इस पूरे CSC नेटवर्क का इस्तेमाल इस ई इंक्लूजन के लिए और IT फॉर मासेस के लिए कर रहे हैं हम, और उसके माध्यम से ही इतने बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को संचालित किया जा सकता है। जैसा कि इस कार्यक्रम के नाम से ही, प्रोजेक्ट के नाम से स्पष्ट है, ई इंक्लूजन इसका नाम रखा गया है। तो ये इसका उद्देश्य केवल कंप्यूटर लिटरेसी प्रदान करना नहीं है, वो भी एक